Namaskar, sir. Good evening to all friends who have joined this webinar and event today. Dear friends, today is a momentous day for the private security industry. On behalf of more than 50 lakh workers of this industry, more than 15,000 micro, small and medium-sized companies and entrepreneurs in this sector, and more than 1 lakh ex-servicemen, ex-police personnel who are engaged in the sector, on behalf of all of us, it is my proud privilege to welcome Honorable Cabinet Minister, Government of India, Mananiya Nitin Gadkari Sahab. Thank you, sir. Thank you very much for sparing time for our industry. Today, more than 1,000 prominent private security industry leaders from the security guarding side, from CCTV manufacturing side, from fire equipment side, all of them today, sir, have joined this webinar and are very eagerly waiting to listen to you, sir. Dear friends, Mananiya Nitin Gadkari ji needs no introduction. He is one of the senior most and the most prominent political leaders of India. However, I will fail in my duties if I do not highlight three very unique aspects of his personality that make him very unique leader of our country. Firstly, I want to underline the fact that apart from being a senior most political leader in the country, Mananiya Nitin ji is also an entrepreneur. He has built businesses with his hands. He has run cooperatives. He has created companies. He completely understands the pain of growing a business, of surviving a crisis, and also the pride of creating jobs and creating world-class products at competitive price. Nitin ji is not only an entrepreneur, he is also a visionary. I would request all participants to spare time to read his book, India Aspires. You must read his book, India Aspires, that outlines ideas for development of India. You will understand the depth of knowledge and the clarity of thought that Mananiya Nitin ji brings to policy making and the vision that he has for India as a nation. Lastly, Nitin ji is not just an entrepreneur and a man of big ideas, he is also a man of action, a man who has been a change maker all his life. Many people know that between 1996 and 1999, when Mananiya Nitin ji was the road minister in Maharashtra, many people talk about the Mumbai-Pune expressway, they talk about flyover. They don't know that during that 3-year period, 1996 to 1999, Nitin ji ensured that 98% of Maharashtra's smallest villages and talukas got rural road connectivity. It is because of his achievement that ex-Prime Minister late Shri Atal Bihari Vajpayee ji appointed Nitin ji the chairman of the National Rural Roads Committee, which gave the grand vision based on which the PM Gramin Sadak Yojana was formulated, and in last 20 years the rural connectivity has been completely changed in the country because of the vision that he set out. I will also like to point out in 2014, when Mananiya Nitin ji took charge of the roads ministry, India was making 2-kilometer national highway per day. Today, even during Corona period, India is constructing more than 30 kilometers of national highway per day, even during Corona. That is the speed and scale of change that Mananiya Nitin ji has brought about. Even as the MSME minister, you will all note that the first and biggest announcement that was made in Atmanirbhar Bharat was 3 lakh crore collateral free auto loans for MSME sector to support
the sector that drives the economy. सर, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है, हमको बहुत गर्व भी है सर, और साथ ही साथ एक नई आशा भी जागी है। प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर वैसे तो सर काफी पुराना सेक्टर है, और किसी भी शहर के हर एक गली या मोहल्ले में, हर एक सड़क पे गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और कैश वैन दिखती ही दिखती है। ये सेक्टर सर्वत्र है सर, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये सेक्टर 1,00,000 करोड़ का सालाना बिजनेस करती है सर, जीएसटी रिकॉर्ड के हिसाब से। टॉप 5 जॉब क्रिएटर है सर। कंस्ट्रक्शन, रिटेल और लॉजिस्टिक्स के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी देश की टॉप 5 जॉब क्रिएटर में एक है सर्विस सेक्टर साइड। और सर, सर्विस सेक्टर में नंबर 3 टैक्स कंट्रीब्यूटर भी है। जीएसटी कंट्रीब्यूशन हमारा टॉप 3 के अंतर्गत आता है। जैसा दिलीप जी ने बताया है सर, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर देश में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, उस दौरान हमारे सारे 50 लाख से अधिक कर्मचारी, सारी की सारी हजारों हजार प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी और उनके मैनेजर और ओनर लगातार काम करते रहे सर, कि नेशनल लॉकडाउन के दौरान देश में सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने में गवर्नमेंट की पूरी मदद हो पाए। 2014 से एनडीए सरकार के अंतर्गत हमारे सेक्टर के काफी सारे समस्याओं का समाधान भी हुआ है सर, लेकिन एमएसएमई की दृष्टि से काफी ऐसे विषय है जो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक था, और आज आपका समय मिला है। मुझे पूरा आशा है, पूरी विश्वास है कि डेफिनेटली सर चीजें आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगी। ऋतुराज जी और सभी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के सभी उद्योजक भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसेंशियल सर्विसेज में गवर्नमेंट ने आपको डालकर जिस प्रकार से हमारे पुलिस वालों ने, मेडिकल, पैरामेडिकल सभी स्टाफ ने रात दिन देश में जनता की सेवा की है, उसी प्रकार की सेवा, उतनी महत्वपूर्ण सेवा हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा लगाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी की है। इतना ही नहीं तो काफी लोगों को कोविड के कारण उनकी मृत्यु भी हुई है। तो आपने इस समय में देश में, समाज में जो कार्य किया है, बहुत कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में, और गवर्नमेंट ने इसको एसेंशियल सर्विस घोषित किया था, और उसमें आप सब लोगों ने जो काम किया, विशेषतः आपसे सुरक्षा रक्षकों ने रात दिन जो काम किया है, वो देश कभी भूल नहीं सकता। निश्चित रूप से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपने ये जो नेशनल सर्विस दी है, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मैंने जब ये पुलिस वालों के लिए, मेडिकल कर्मियों के लिए ट्वीट किया था, तो मेरे ट्वीट में मैंने सुरक्षा रक्षकों का भी उल्लेख किया था, और निश्चित रूप से आपका ये काम, आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्री का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अभी आपने बताया 1,00,000 करोड़ का लगभग इसका टर्नओवर है, और बड़े प्रमाण पर लोगों को रोजगार भी मिला है। रूरल गांवों से आए हुए लोगों को ट्रेनिंग देकर आपने उनको रोजगार भी दिया है, और ये 22% इसकी ग्रोथ है जो अभी बताया गया। तो ये इंडस्ट्री देश में बहुत बड़े प्रमाण में रोजगार निर्माण करने वाली इंडस्ट्री है। तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, साइज, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी में, और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये पहले कितने टैक्सेस लगते थे और अब कितने टैक्सेस लगते हैं, इसकी केस बनाकर आप जरूर मेरे पास आइए। मैं इसमें फायर का भी निकालिए, ये जो सीसीटीवी और आपका जो आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका भी आप निकाल के लाइए। मॉडरेट कितना मिलता है, और आप इसके ऊपर स्वाभाविक रूप से आपको जो जो आप खरीदी करते हो उन चीजों के ऊपर यहाँ कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, वो भी बताइए। तो मैं आपकी केस अच्छी तरीके से तैयार करके
निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर के पास रिकमेंड करूंगा। और ये भी बात खुशी है मुझे कि आप में से अनेक लोग अब फॉरेन में भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऋतुराज जी भी करते हैं और बाकी भी लोग अनेक जगह पर कर रहे हैं, उनकी कंपनियां भी वहां अच्छा काम कर रही है। तो ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये रोजगार देने वाली है। कोई तो भी आप में से डिटेल में पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सभी बातों का अध्ययन करके और इस बिजनेस की भविष्य की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसकी एक एप्रोप्रिएट विजन आप लोग जरूर तैयार करिए। जहां तक एमएसएमई के सेक्टर में इसको लाकर इसको क्या क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, मैं जरूर इसके ऊपर विचार करूंगा। तो मैं ये मानता हूं कि इन सब बातों के लिए हमको एक नई विजन लेकर पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे जाना है। सरकार आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभारी हूं।